So, a very warm good evening to everyone present here, and it's my pleasure to welcome you all on behalf of 50 IITS Student Chapter to the first session of 2 days webinar series on writing a research article. So now it is believed that research work helps students to focus more and build their own opinions about a particular topic and evolve their critical thinking. So for the research article, act as a medium for creating and exchanging different ideas and finding solutions for different problems and which creates the future path of our industry. So today, to enlighten us with all the aspects of research paper writing, as a guest of honor, we have Suesh Vatsa, an alumnus of IIT ISER. He has secured a placement at ONGC as an assistant executive engineer and has also received a proposal for pursuing his master's in petroleum engineering from the prestigious King Fahd University at Petroleum and Minerals in Saudi Arabia. Sir has successfully worked in 3 research papers, with his major work in the field of thermodynamics and kinetic inhibitors for wax and asphaltenes deposition in the pipelines. So, in today's session, Sir will cover most of the aspects of current scenario of research work in oil and gas industry and the important topics of research work in the industry that are going on. And with his own experience, he will also share the do's and don'ts in research paper writing. And there is an announcement for all the participants. At the end of the session, we will be having a short question and answer session. So if you have any doubts regarding the session, so you can write on the chat box. We will address them at the end of the session. So now, without wasting any time, I would like to invite Suresh sir to continue the session. Over to you, sir. Okay, my screen is visible to you guys now. Yes, sir. It's visible. Are you all comfortable in Hindi as well? I think. This. Okay. Yes, sir. So I have been told that I have to discuss a little about oil and gas industry also. So let's begin with that. As all of you know, मतलब रिसर्च तो हर जगह हो रहा है, मतलब ऑयल इंडस्ट्री में भी है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में भी है. तो जो 55% के आसपास जो रिसर्च होता है वो क्या होता है, वो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में होता है. लाइक जैसे अगर तुम जैसे हमारा जैसे ऑयल वेल्स ड्रिल होता है, मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेट्रोलियम रिजर्व्स वगैरह उसमें से प्रोबेबल रिजर्व्स फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ पे मतलब ऑयल का मतलब ऑयल इन प्लेस कितना है, मतलब पहले एक्सप्लोरेशन वाला काइंड चलता है. उसके बाद हम क्या करते हैं कि पहला एक्सप्लोरेशन वेल्स ड्रिल करते हैं. तो उसमें जो बहुत अभी रिसर्च करना मतलब बहुत बाकी है. तो सबसे ज़्यादा रिसर्च जो होता है वो इनिशियल फेज ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो होता है वो है कि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन. फिर जब एक्सप्लोर करके वो बेसिकली जियोलॉजी और जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट का होता है. तो जो 55% कंट्रीब्यूशन है हमारे रिसर्च में जो अभी हो रहा है वो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में ही हो रहा है. और जो फिर अगर एक्सप्लोर हो जाता है वेल्स, जैसे हमारा अगर मान लो किसी पार्टिकुलर प्लेस में हमारा OIP अच्छा खासा आ गया, हमारा प्रोबेबल रिजर्व्स हमें अच्छा खासा मिल गया, तो फिर हम एक एक्सप्लोरेशन वेल ड्रिल करते हैं. तो उसके बाद जो भी रिसर्च मतलब हम कर सकते हैं, जैसे लाइक कि काइंड ऑफ स्टैटिक मॉडलिंग वहाँ से स्टार्ट होता है. तो उसमें बहुत सारे रिसर्च करना बाकी है, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत सारा इन्वॉल्व है. हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वहाँ पे बेसिकली बहुत सारा मैथमेटिकल फार्मूला होता है. तो हम उसमें रिसर्च कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा फार्मूला यूज़ करें जिसमें एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर वगैरह बहुत कम हो. ये एडमिट, कैन यू गाइस प्लीज एडमिट द person that I covered? Okay, I am getting the request here. Yes, sir, we will do that. Okay. So after that we just when we drill the first well, that is exploration well, उसके बाद आ जाता है कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब सबसे पहले ड्रिलिंग वगैरह जो हो रहा है उसमें भी अभी रिसर्च होता है लेकिन उतना नहीं होता. फिर जब हमारा जो ऑयल फिर हमारा जो ऑयल प्रोड्यूस होने लगता है या फिर जो होता है, तो उसमें हमारे पास बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है. जैसे कि एक होता है सबसे बेसिक प्रॉब्लम जिस पे अभी सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रहा है हमारे ऑयल इंडस्ट्री में, वो है फ्लो एश्योरेंस. जब भी ऑयल आता है तो उसके विस्कोसिटी के कारण कभी कभी क्या होता है कि वैक्स वगैरह डिपॉजिट होता है पाइपलाइन में.
तो अभी बहुत सारा हम क्या करते कि इमल्सिफायर यूज़ करते और बहुत सारे केमिकल एडिटिव्स यूज़ करते हैं उसमें उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये सारा बेसिक प्रॉब्लम्स जो हम लोग कवर करते हैं वो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में कवर करते हैं। प्रोडक्शन में बेसिकली सैंड कंट्रोल टेक्निक्स ये सब भी आता है, तो ये सब पे रिसर्च जो हो रहा है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फेज़ आता है, मतलब ये जो पार्ट हो गया एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, ये बेसिकली एक स्टैटिक मॉडलिंग हो गया जो कि जिसमें 60 to 70% कंट्रीब्यूशन जियोलॉजी और जियो फिजिसिस्ट वालों का होता है। फिर हमारा काम आता है रिजर्वॉयर इंजीनियर्स या फिर पेट्रोलियम इंजीनियर्स। जब ऑयल प्रोड्यूस हो रहा, मतलब अभी तक जो ऑयल प्रोडक्शन हो रहा या गैस प्रोडक्शन हो रहा वो प्राइमरी मैकेनिज्म से हो रहा, लाइक ड्राइव मैकेनिज्म। इसमें जितना रिसर्च होना था वो हो गया, उसमें जितना डेवलपमेंट हो सकता था वो हो गया। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो है कि इंक्रीज रिकवरी। तो मतलब हाउ टू इंक्रीज रिकवरी, मान लो कि प्रेशर डिप्लीट हो गया 3-4 साल में, 5 साल में अच्छा खासा प्रेशर डिप्लीट हो गया। अब जो रेट हमें चाहिए या फिर जो मनी हमारा लग रहा है एज कम्पेयर टू जो हमें रेट चाहिए वो मिल नहीं पा रहा। तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होता है जो कि होता है सेकेंडरी मैकेनिज्म, जिसमें आर्टिफिशियल लिफ्ट वगैरह वो सब पे रिसर्च भी अच्छा खासा हो रहा है, क्योंकि वो एक मेजर पार्ट है हमारे इंडस्ट्री का। अगर तुम पैसा खर्च करो तो तुम चाहोगे कि उतना आउटपुट आना चाहिए बदले में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा कि हमारे पास है आर्टिफिशियल टेक्निक्स तो बहुत, लेकिन हमें ओवरऑल इकोनॉमी देखना पड़ता है कि हमारा जो रिटर्न है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है कि नहीं। तो बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होना चाहिए विथ गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो देखने के लिए अब हम लोग हर एक आर्टिफिशियल लिफ्ट डिज़ाइन करते हैं। तो उसमें हमारा मतलब जैसे अभी बेसिकली हम लोग सबमर्सिबल पंप, इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप और एसआरपी गैस लिफ्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं एज अ सेकेंडरी टेक्निक। तो उसमें अभी और भी रिसर्च चल रहा कि और क्या क्या बेसिक टेक्निक हो सकता है जो हम लोग एट द मीन टाइम लाइक फ्रॉम 8 टू, बेसिकली ज़्यादातर रिजर्वायर जो ज़्यादातर अनकन्वेंशनल रिजर्वायर या फिर कोल बेड मिथेन वाले रिजर्वायर होते हैं वो बेसिकली 8 to 15 ईयर्स में फिर वो मतलब प्रेशर डिप्लीट होने लगता है। तो वहाँ पे रिसर्च का जरूरत है। तो वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा डायनामिक मॉडलिंग। जब से हम ये डिस्कस करना स्टार्ट करते कि अब हमारा प्रेशर इतना डिप्लीट हो गया और क्या मैकेनिज्म हम यूज़ करें कि हम प्रेशर को मेंटेन कर सकें। तो ये कवर होता है, ये 22% रिसर्च अभी इस पे ही हो रहा। फिर 10% हो गया, एक सेकंड, फिर 10% होता है हमारा डेवलप कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज। जैसे हमारा फाइनल ईयर में अगर तुम आओगे तो 2-3 टॉपिक होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें पहले से समझ आए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक एक होता है डिक्लाइन कर्व एनालिसिस और एक होता है प्रेशर ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो ये सब जो फैक्टर्स है ना, ये सब निकालता है कि हमारा प्रेशर कैसे वेरी करता, हमारा परमेबिलिटी कैसे वेरी कर रहा, हमारा और भी मेजर रिजर्वायर प्रॉपर्टीज कैसे वेरी कर रहा। तो इस किस किस फैक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है ये बेसिकली रिसर्च कर लें अगर हम, तो वहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। लाइक कि अगर हमारा वहाँ पे प्रेशर काफ़ी लो हो गया और या फिर परमेबिलिटी काफ़ी लो है तो हम पार्टिकुलर एक इंग्रेडिएंट एक एडिटिव डालें या फिर जो भी मेथड है उसको इम्प्रूव करने का वो कर सकते हैं, रेदर देन इंक्रीजिंग। मतलब हम सारे फैक्टर्स पे ध्यान नहीं दे सकते। तो 10% रिसर्च हमारा वहाँ पे चल रहा कि हम लोग बेसिकली अपना जो टारगेट जोन है वो थोड़ा कन्फाइंड करें कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा। मतलब जैसे लाइक परमेबिलिटी प्रॉब्लम है तो सिर्फ परमेबिलिटी, तो 10% वो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज, ताकि हमारा कॉस्ट भी कम लगे और हमें आउटपुट भी उस हिसाब से मिले। थर्ड है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब हर कोई चाहता है कि हमारा जो सस्टेनेबल है, हमारे जो ऑयल डेवलपमेंट हो या फिर ऑयल फील्ड हो वो सस्टेनेबली प्रोड्यूस करें, और सस्टेनेबल फ्यूचर होना आजकल तो बहुत ज़रूरी है। तो इसका 2-3 वेज है जिस पे रिसर्च करते हैं हम लोग। अगर तुमसे कोई पूछे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो तो जो फर्स्ट आंसर आता है हमारा वो कि जो नीचे वाला जो ग्राउंड वाटर है उसका कम से कम यूज़ हो और जो मिथेन प्रोडक्शन हो रहा है, ऑयल स्पिल हो रहा है वो कम से कम हो। फिर एक प्रॉपर सॉल्यूशन ये देते लोग कि रिन्यूएबल सोर्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन एट अ टाइम जब एज अ पेट्रोलियम इंजीनियर वी डोंट नीड इट नाउ, लेकिन हाँ वो एक सॉल्यूशन तो है। तो उसमें 8% लगभग रिसर्च अभी भी हो रहा है कि सस्टेनेबली कैसे प्रोड्यूस करें। तो बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो जो वाटर इनफ्लक्स या फिर वाटर फ्लडिंग हम यूज़ करते उसमें कम से कम यूज़ हो। इंस्टेड ऑफ दैट अभी ईआर टेक्निक्स लाइक पॉलीमर फ्लडिंग, केमिकल CO2 वगैरह फ्लडिंग वो सब यूज़ कर सकते हैं। फिर एक है न्यू एनर्जी एंड HSE, जैसा कि वही कि न्यू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पे रिसर्च हो रहा है 5%। मतलब कुछ तो डेवलप्ड फॉर्म है लाइक सोलर, विंड, ये सब
तो उसमें मतलब हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है एक पाई चार्ट जिसमें हमारे इंडस्ट्री में जो रिसर्च का कंट्रीब्यूशन है वो है 55% अभी भी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन पे है, और 22% जो हमारा काम है रिकवरी को इंक्रीज करना, उस पर रिसर्च हो रहा है। फिर आते हैं, हाँ, रेदर देन डिस्कसिंग अबाउट करेंट टॉपिक्स, लेट्स डिस्कस वन प्रॉब्लम। आर यू ऑल एम आई ऑडिबल ना? Yes, sir, you are audible. लेट्स डिस्कस। हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि फ्लो एश्योरेंस और सैंड कंट्रोल ये सब भी बहुत मेजर प्रॉब्लम है मतलब प्रोडक्शन के टाइम पे। तो फ्लो एश्योरेंस में क्या होता है, जैसे हमारे पास तुम लोगों ने सारा, लेट्स मेक इट मोर इंटरेक्टिव सेशन, ओके ओके। Sure, sir. हाँ, तुम्हें सारा एनालिसिस के बारे में पता है? सारा like saturate, aromatic, resin, asphaltene. Have you heard of that? Anyone? No, sir. Okay, no problem. एक तुम लोगों ने वैक्स डिपोजिशन तो पता है ना कि अगर ऑयल फ्लो होता है, विस्कोसिटी हाई हो तो वैक्स डिपोजिट होता है पाइपलाइन में। Yes, sir. दैट इज अ Yes. मेजर प्रॉब्लम नाउअडेज, ओके। तो उसमें क्या होता है ना कि हमारा बेसिकली एस्फाल्टीन और पैराफिन और वैक्स डिपोजिशन होता है पाइपलाइन में, जिसके कारण फ्लो एश्योरेंस हमें नहीं मिल पाता, हमारा ऑयल फ्लो रेट कम होता है, और मतलब पाइपलाइन कोरोड हो सकता, और भी मेजर प्रॉब्लम्स, और सरफेस इक्विपमेंट, फिर सरफेस इक्विपमेंट ये सब कोरोड हो सकता। तो उससे हमारा कॉस्ट लॉस तो है ही, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना आउटपुट भी नहीं आएगा, और भी मेजर प्रॉब्लम्स है। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है। तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉर्मेशन, जैसे ये देखो, दिस फ्लो एश्योरेंस इशू में काउज फॉर्मेशन डैमेज इन पोरस मीडिया एंड द प्लगिंग ऑफ वेल बोर्ड। ऑब्वियसली मतलब अगर हो तो ये वेल बोर्ड प्लग करेगा ही। तो अभी जैसा मतलब हम प्रेजेंट में काफ़ी केमिकल एडिटिव्स एमल्सिफायर है जो कि ऑलरेडी ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जो कि अल्टीमेट है, जो कि कम्प्लीटली इस पूरे वैक्स डिपोजिशन को या फिर पूरा वैक्स को रिमूव ही कर दे पाइपलाइन से, या फिर एस्फाल्टिन को पूरा रिमूव ही कर दे पाइपलाइन से। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं। ओके, तुम लोगों ने ओकरा सुना होगा या सभी खाते होगे? ओकरा सुना है किसी ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. क्या होता है ओकरा? क्या होता है एनीवन? ओकरा Sir, भिंडी. Lady finger, sir. हाँ, तो अब तुम सो मतलब लेट्स थिंक अबाउट ओकरा, लाइक ये फ्लो एश्योरेंस हो रहा है पाइपलाइन में, हमें फ्लो एश्योरेंस लाना है, वैक्स डिपोजिशन ऑलरेडी है वहाँ अच्छा खासा। तो ओकरा से तुम्हें क्या आ रहा है दिमाग में, क्या कर सकते हैं? लाइक मतलब टॉपिक ऐसे ही डिसाइड कर पाओगे तुम, ऐसे कि अभी करंट में क्या चल रहा, वाटर फ्लडिंग चल रहा तो चलो वाटर फ्लडिंग पे कर लेते हैं, या फिर वाटर इन्फ्लक्स चल रहा तो चलो वाटर इन्फ्लक्स डिज़ाइन, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग चल रहा तो चलो उसका डिज़ाइन कर लेते हैं। वो तो सभी कर रहे हैं। लाइक ये बताओ ओकरा क्या कर सकता है इसमें, है कुछ हेल्पफुल ये? तुम्हें पता हो ओकरा का जो काफ़ी स्लिपरी नेचर होता है, अगर तुम उसको काट लो तो वो हाथ में बहुत स्लिपरी टाइप फील होता है, वो बहुत ही स्लिपरी वेजिटेबल है। किसी ने देखा है ना, खाया है ना किसी ने ओकरा? तो Yes, sir. हाँ सर। तो हम क्या करते हैं ना, मतलब अगर तुम मतलब ये रिसर्च अब तुम सर्च करोगे तो ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। बेसिकली मेरा एक टॉपिक अभी ये चल रहा था तो हम सोचे तुम लोग को बताएं। तो इसमें ये है कि अगर तुम ओकरा का सॉल्यूशन पानी में डाल करके तुम ऑयल के साथ मूव करो, एक एक होता है कि फ्लो लूप एक्सपेरिमेंट होता है जो कि हमारे डिपार्टमेंट में भी है, तुम चाहो तो कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि अगर ओकरा को मिक्स करके ऑयल के साथ किया जाए तो जो वैक्स डिपोजिशन है वो पाया गया कि एज कम्पेयर टू जो पहले हो रहा था वो कम होता है, क्योंकि उसका स्लिपरी नेचर के कारण वो मतलब वैक्स को टिकने नहीं देता पाइपलाइन पे, क्योंकि उसके इंटरनल वॉल्स पे। तो ये एक जैसे ऐसे ही तुम टॉपिक मतलब डिसाइड कर सकते हो। जैसे एक चीज़ दिमाग में आया कि हाँ चलो ओकरा, इसका स्लिपरी नेचर है, बहुत सस्ता है, लेडी फिंगर तो आजकल हर जगह मिलता, जैसे हमारे यहाँ तो 30 रुपीज़ पर के जी ऐसे, तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं, बहुत सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया। तो उस पर अगर रिसर्च किया जाए तो हाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। वैसे एक और सॉल्यूशन है फ्लो एश्योरेंस का, जैसे कि उस पर भी काफ़ी रिसर्च चल रहा है, आयनिक लिक्विड। सुना है किसी ने आयनिक लिक्विड? No, sir, not yet. आयनिक लिक्विड एक वे है जिसमें मतलब वो काफ़ी उसका है मतलब कॉस्ट, तो उस पर भी रिसर्च ही चल रहा है कि वो कितना इफेक्टिव है। तो ओकरा एक बेसिक सा प्रॉब्लम है, तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब कुछ देर के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए वो हटा सकता, लेकिन हाँ इस पर रिसर्च करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर तुम डिपार्टमेंट में ही किसी को बोलो तो एक स्लोली एक्सपेरिमेंट टाइप दे दे तो तुम कर सकते हो।
हाँ, अब ये रहा कि क्या क्या टॉपिक है। हाँ, फिर भी अगर तुम्हें टॉपिक जानना है कि जो जिस पे रिसर्च काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है और काफ़ी रिलेटेड है और काफ़ी आराम से तुम पढ़ सकते हो, तो वो एक फ्लो स्टूडेंट्स जो हम बोल दिए, वाटर कोनिंग। वाटर कोनिंग के बारे में तो सबको ही पता होगा, थर्ड ईयर हो ना? So we have Yes, sir. some students from first year also. So, ओके 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 ओके। हाँ, तो वाटर कोनिंग बेसिकली ये होता है जब तुम वेल्स ड्रिल करते हो तो नीचे से मतलब जब ऑयल एक तो ऑयल, उसके नीचे एक ऑयल वाटर लेवल, फिर वाटर रहता है। तो तुम वेल्स ड्रिल तो करते हो ऑयल पे, लेकिन प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होता है कि जो वाटर का लेवल होता है, फ्लो वाटर लेवल, वो ऊपर की ओर आता है बाय द टाइम द प्रेशर डिप्लीट होता है। तो प्रेशर फिर और डिप्लीट हुआ तो वो लेवल और ऊपर आता है और ऊपर आता है। फिर बाय द टाइम क्या होता है कि वो ऑयल के बदले वाटर प्रोड्यूस होने लगता है, ऑयल का फ्लो रेट कम होता है और वाटर प्रोड्यूस होने लगता है। मतलब एक फील आना चाहिए, ऐसा होता है। तो अब रिसर्च इस पे चल रहा कि हाँ, इसको कैसे रोका जाए और कौन सा मतलब क्या फार्मूला है कि वाटर कोनिंग के टाइम पे क्रिटिकल ऑयल रेट दे सके। मतलब अगर तुम लोगों ने जिसने पढ़ा है उन्हें क्रिटिकल ऑयल रेट के बारे में पता होगा वाटर कोनिंग में, ठीक है। तो वाटर कोनिंग में क्या होता है कि तुम ये रिसर्च करके बता सकते हो कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। और अगर तुम्हें वो पता चल गया कि लाइक विस्कोसिटी पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, मेरा एक प्रोजेक्ट था इस पे, वो आई विल डिस्कस लेटर, ओके। अभी तो हाँ, तो उसमें किस फैक्टर पे ज़्यादा डिपेंड करता है, लाइक अगर हॉरिजेंटल परमिलिटी पे डिपेंड करता, वर्टिकल परमिलिटी पे डिपेंड करता। तुम अगर कन्फाइंड हो गए कि हाँ चलो विस्कोसिटी पे ज़्यादा डिपेंड करता है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जो सिर्फ विस्कोसिटी को इफेक्ट करे। तो हमारा एक तो कॉस्ट कम हो गया। तो ये रिसर्च करने का फैक्टर है कि हम पहले ये पता करें कौन सा क्रिटिकल रेट हम चूज़ करें, दूसरा कि किस फैक्टर पे ज़्यादा डिपेंड करता। तो ये सारा टॉपिक पे अगर तुम डीप में पढ़ोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखेगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ चलो ये फाइंड कर सकते हैं। ये सबसे बहुत ज़्यादा बेहतर है अगर तुम गूगल पे सर्च करो लाइक कि अभी कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा रिसर्च हो रहा, तो तुम्हें आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा योर टेक्निक्स वाटर इन्फ्लक्स, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये सारा टॉपिक पे तुमको पता चलेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो ये कर सकते हैं। फिर वो सारा एनालिसिस के बारे में मैंने बताया, जिसमें क्या होता है कि सारा मीन्स सैचुरेट, एरोमेटिक, रेजिन, एस्फाल्टिन, ये सारे फैक्टर पे वैक्स और एस्फाल्टिन डिपोजिशन डिपेंड करता। ये चलो तुम लोग पढ़ोगे। हाँ, ये प्रेशर ट्रांजिएंट एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट ऐसा है जो कि सेकेंड ईयर से पढ़ो तो काफ़ी सही है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो ये प्रेशर ट्रांजिएंट एनालिसिस, वेल टेस्टिंग जिसको कहते हैं, इसी का सब पार्ट है। और दूसरा ये ईओआर टेक्निक्स, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ तुम्हें ये दो टॉपिक से काफ़ी क्लियर हो जाएगा। प्रेशर ट्रांजिएंट एनालिसिस क्या होता है, जैसे वेल टेस्टिंग, जैसे तुम्हारे वेल्स को कोई प्रॉब्लम हुआ, तुम्हें अब प्रेशर जानना है कि यहाँ पे क्या प्रेशर है, क्या स्किन है, स्किन के बारे में पता ना सबको, स्किन फैक्टर। फर्स्ट ईयर वाले के लिए तो मेरे ख्याल से ये सेशन ज़्यादा रहेगा नहीं इंटरव्यू, क्योंकि हमें ऑयल एंड, अच्छा ठीक है, जब रिसर्च पेपर आएगा तो स्किन के बारे में पता किसी को yes, sir. Yes. क्या होता है स्किन, कोई बता सकता है स्किन क्या होता है? So the damages that was created in the well bore, like, hello, sir. हाँ हेलो, यस यस, योर Sir, ऑडियो। sir, it is the measure of damage that is created in the well bore and formation. हाँ हाँ हाँ, सही है। तो बेसिकली क्या होता है, जब प्रेशर बहुत डिप्लीट होता है ना, तो ये स्किन फैक्टर मतलब फिर ये रोल पे आता है। अच्छा, स्किन फैक्टर नेगेटिव होगा तो डैमेज या फिर पॉजिटिव होगा तो डैमेज? सर अगर नेगेटिव होता है तो फ्लो ज़्यादा इजीली होता है, और अगर पॉजिटिव होता है तो फ्लो में रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। हाँ, तो ये सारा चीज़ तुम्हें प्रेशर ट्रांजिएंट एनालिसिस से पता चलता है। ये बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ डार्सी इक्वेशन है, जो सब कोई पढ़े हो गए मतलब अभी तक। तो एक डिफ्यूजिविटी इक्वेशन होता है, फिर उसका एक्सटेंशन है। यहाँ से हम लोग क्या प्रेशर वर्सेस रेट, प्रेशर वर्सेस टाइम वगैरह का डिटेल पाते हैं। फिर वहाँ से हम लोग स्किन परमेबिलिटी ये सब के बारे में जान सकते हैं। तो प्रेशर ट्रांजिएंट एनालिसिस एक टॉपिक है, तुम कोई भी बुक से पढ़ो तो वहाँ पे तुम्हें बहुत सारा टॉपिक मिलेगा जिसमें तुमको लगेगा कि हाँ इस पे रिसर्च किया जा सकता है या फिर इस पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरा टॉपिक। तीसरा वाटर फ्लडिंग, ये तुम अगर गूगल कर लो ना कि किस टॉपिक पे रिसर्च करना है पेट्रोलियम में, तो सबसे पहला नाम इसी पे आएगा, वाटर फ्लडिंग डिजाइन और डिफरेंट एनालिसिस और डिफरेंट यूआर टेक्निक्स लाइक पॉलीमर फ्लडिंग, CO2 फ्लडिंग। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये एज यूजुअल था तो मैंने डाल दिया, हाँ इस पे कर सकते हो।
हाँ चौथा, मतलब अगर कोई रिसर्च करके मास्टर्स करना चाहता है ना, या फिर ये, तो इस टॉपिक का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये पेट्रोलियम इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा, मतलब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, तो ये सबसे ज़्यादा ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग बहुत सारे कॉलेज में अभी भी उस टॉपिक पे मास्टर्स होता है। तो पेट्रोलियम इकोनॉमिक्स अगर तुम पढ़ लिए वो थोड़ा सा भी टाइम निकाल करके, तो ये काफ़ी मतलब सिंपल है और काफ़ी आसान है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें अभी भी काफ़ी रिसर्च कर सकते हैं तुम। जैसे कैश फ्लो मॉडल बनाना है, किसी ने NPV IRR पढ़ा होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सब, तो ये सब फैक्टर इस पे आता है। तो पेट्रोलियम इकोनॉमिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे रिसर्च किया जाता है। मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन तो ओवरऑल हर जगह है, CSE इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह। मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होता है जिससे हम बता सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लाइक एक डार्सी इक्वेशन है तुम्हारे पास, तुम्हें एक सिंगल रेट चुनना है, तुम्हारे पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ परमेबिलिटी, एरिया, विस्कोसिटी, लेंथ और प्रेशर डिफरेंस है। तो ये एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है जिससे हम एक वैल्यू चुन सकते हैं जो कि मोस्ट फिट वैल्यू आएगा तुम्हारा रेट का। तो ये तुम अगर डिटेल में पढ़ो तो तुम्हें और पता चलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मतलब ग्रोइंग टॉपिक है। इसमें मास्टर्स करना मतलब अगर तुम्हारे पास एक भी अच्छा खासा प्रोजेक्ट हो या फिर एक भी पेपर हो इस टॉपिक पे, तो तुम मास्टर्स के लिए आराम से अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। लाइक अल्बर्टा वगैरह में ये टॉपिक काफ़ी फेमस है, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा कनाडा। पांचवा, ये हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग डिज़ाइन, ये भी तुम्हें गूगल पे मिल जाएगा अगर तुम सर्च करोगे कि किस टॉपिक पे करना चाहिए। तो ये हाँ, प्रॉप एंड डिज़ाइन वगैरह, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग डिज़ाइन, ये सब। हाँ, एक रिसेंट टेक्नोलॉजी है नैनो टेक्नोलॉजी, तुम लोगों ने सुना होगा। तो वो एक टेक्नोलॉजी जिससे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग डिज़ाइन अभी हो रहा, मतलब वो भी अभी उस पर बहुत सारे रिसर्च करना बाकी है। तो वो टॉपिक अगर तुम पढ़ो डीप में तो तुम्हें पता चल सकता है कि हाँ ये टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, हाँ ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी काम का चीज़ है। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर, बेसिकली ये तुम्हें कल भी पता चलेगा, कल वाले सेशन में, लेकिन हाँ आई थॉट कि आई शुड इंक्लूड सम पार्ट। ओके, हाँ तो इसमें क्या होता, बेसिकली 8 सेक्शन होता है हर एक रिसर्च पेपर में। एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता, जैसे कि तुम पूरा का पूरा पेपर लिख दिए, एक फर्स्ट राउंड में पूरा का पूरा पेपर लिख दिए, उसके बाद तुम्हें जो एक छोटा एब्स्ट्रैक्ट, एक पेज से भी आधा पेज का होना चाहिए। तुम कहीं भी एब्स्ट्रैक्ट भेजो तो आधा पेज या मैक्सिमम से मैक्सिमम 3/4 ऑफ पेज वो होना चाहिए, विथ फॉन्ट 10 और 11। ठीक है, हाँ। तो उसमें क्या करते हैं कि जो पहला 2-3 लाइन होता है वो इंट्रोडक्शन का मतलब उसका समरी होता है, फिर नेक्स्ट 2-3 लाइन होता है वो मेथोडोलॉजी का समरी होता है, फिर नेक्स्ट 2-3 लाइन वो रिजल्ट्स का समरी होता है, फिर फाइनल 2-3 लाइन वो कंक्लूजन का समरी होता है। तो बेसिकली 7-8 लाइन, मैक्सिमम 8-9 लाइन वो पूरा एब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब जिसमें पूरा पेपर का हर एक सेक्शन कवर होता है, मतलब हर एक सेक्शन का समरी रहता है। तो ये वो एब्स्ट्रैक्ट। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे तुम्हारा टॉपिक है मान लो वाटर कॉनिंग, उसमें तुम रिसर्च कर रहे हो, तो या फिर तुम्हारा टॉपिक है फ्लो एश्योरेंस, या फिर कुछ भी तुम्हारा जैसे पॉलीमर फ्लडिंग तुम्हारा टॉपिक है, तो तुम्हें इंट्रोडक्शन में बताना है फ्रॉम मतलब हर एक कीवर्ड्स जो तुम डिस्कस करो। लाइक पॉलीमर है तो पॉलीमर क्या है, कौन कौन सा अभी ईओआर टेक्निक चल रहा है, फिर पॉलीमर फ्लडिंग क्या है, इसमें किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये, फिर ये पूरा इंट्रोडक्शन में बात, मतलब पूरे टॉपिक का पूरा डिस्क्रिप्शन ये इंट्रोडक्शन में आता है। फिर लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि इसमें अभी क्या क्या रिसर्च चल रहा है और तुम उस रिसर्च से कैसे मतलब तुम उससे रिलेट कर पा रहे हो, या फिर तुम्हारा उस बाकी जो रिसर्च हो चुका है उससे अलग है, तो तुम बाकी का रिसर्च को लिखते हो यहाँ पे, और तुम्हारा अपना रिसर्च ये इससे कैसे रिलेटेड है ये सब तुम लिटरेचर रिव्यू में लिखते हो। ठीक है, तो ये एक बड़ा सेक्शन होता है। जैसे इंट्रोडक्शन बेसिकली 1-2 पेज, जितना छोटा पेपर हो उतना अच्छा, और लिटरेचर रिव्यू तुम्हारा थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें बेसिकली तुम या सबसे ज़्यादा रेफरेंस जो साइटेड होते हैं वो लिटरेचर रिव्यू में ही होता है, यहीं से साइटेशन स्टार्ट होता है, सारे मतलब रिसर्च आर्टिकल का साइटेशन यहीं से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली तुम इस टॉपिक पे जितना वर्क हुआ है वो यहाँ पे लिखते हो। मेथोडोलॉजी, जो तुम करना चाह रहे हो उसका क्या क्या मेथड्स है, यहाँ पे बेसिकली फार्मूला होता है, उसका इक्वेशंस जो भी है तुम यूज़ कर रहे हो वो सब होता है मेथोडोलॉजी में। तो प्रॉपर इक्वेशंस वगैरह, या फिर तुम्हारा क्या मेथड है, तुम क्या करना चाह रहे हो, फिर उस मेथड से जैसे तुम्हारा कुछ ग्राफ आया या फिर तुम्हारा कोई रिजल्ट आया, फिर तुम उसको डिस्कस करोगे रिजल्ट में, मतलब उसको तुम शो करोगे, जैसे तुम्हारा कुछ ग्राफ आया या फिर फॉर्मूला
से तुम कुछ निकाल रहे हो, या फिर मैटलैब कर्व फिटिंग यूज़ करके तुम कोरिलेशन निकाल रहे हो, या फिर एक्सेल से कोरिलेशन निकाल रहे हो, तो वो सारा जो ग्राफ्स आएगा वो रिजल्ट्स में आएगा। फिर डिस्कशन कि जो तुम्हारा रिजल्ट्स आया उससे तुम्हें और वो डेटा से वो कैसे रिलेट कर रहा है, तुम्हें क्या समझ आ रहा है, मतलब ये जो तुम्हारा टॉपिक है वो उसके कैसे, मतलब वो उसको कैसे फेवर कर रहा, और उसमें तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या समझ आ रहा है कि मतलब जो जिस टॉपिक से तुमने करा वो उससे रिलेट कर पा रहा है कि नहीं। कंक्लूजन ये ओवरऑल पेपर का कंक्लूजन होता है, और जिसमें तुमको कंक्लूजन एक ऐसा पार्ट है जिसमें तुमको लिटरेचर रिव्यू से रिलेट करना पड़ता है, कि जैसे तुमने बाकी रिसर्चर्स का वहाँ पे नाम लिखा, उनके पेपर बताए, उन्होंने ये काम करा और तुम्हारा ये काम है, तो उससे रिलेट करना होता है कि उन्होंने ये करा, उनका अभी तक रिसेंट एडवांसमेंट ये था और मेरा ये है, तो ये यूज कर सकते हैं या फिर वो यूज कर सकते हैं, बेसिकली कंपेयर करते हैं वहाँ पे। फिर हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट रेफरेंस। मैंने जब पेपर सबमिट किया था अपना सबसे पहला पेपर, तो मेरा 2 बार पेपर रिजेक्ट हुआ था, वो 2-3 कारण से। हाँ, आई विल टेल यू। एक जो मेन कारण था वो तो आई विल टेल यू लेटर। एक ये कारण था कि रेफरेंस साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर साइटेशन वो लिटरेचर रिव्यू में होता है, और थोड़ा बहुत साइटेशन वो इंट्रोडक्शन पार्ट में होता है। तो जैसे तुम अगर किसी पेपर से कुछ उठा रहे हो, लाइक एक पैरा उठा रहे हो, लाइक तुम पॉलीमर फ्लडिंग का डेफिनेशन ही उठा रहे हो, तुम्हारा टॉपिक है पॉलीमर फ्लडिंग से रिलेटेड कुछ, तुम डेफिनेशन उठा रहे हो, तो तुम्हें पूरा का पूरा नहीं उठाना, वहाँ पे प्लेगरिज्म वाला लोड हो जाता है। तुम्हें क्या करना है कि या तो बहुत सारा मतलब ऑनलाइन ट्रैकिंग है, मतलब जैसे एडवांस प्लेगरिज्म चेकर या एडवांस प्लेगरिज्म रिमूवर, तुम वहाँ से रिमूव कर सकते हो, लेकिन तुम ऑटोमेटिक मतलब तुम खुद अपने सेंटेंस में लिखो और उसको डालो। फिर वहाँ पे रेफरेंस साइटेशन का 2 तरीका होता है, या तो नंबर जैसे 1 2 3 करके, या तो तुम नाम लिखो, लाइक अगर लाइक कोई अल्बर्टो है और कोई है मतलब लाइक कुमार अल्बर्टो, ये 2 लोग का पेपर है, तो तुम्हें क्या करना है कि हर एक लाइन, जैसे तुमने उसका लाइन लिखा, उसका कोई भी पेपर से कोई भी सेंटेंस लिखा, तो उसके साइड में ब्रैकेट में अल्बर्टो एंड कुमार, और अगर 3 से ज़्यादा ऑथर है तो तुम्हें एक का नाम लिखना है, फिर ETAL। ये क्या होता है कि सारे ऑथर को कवर कर लेता है, लाइक अल्बर्टो कुमार, फिर और भी बहुत सारे लोग हैं, 7-8 लोग हैं, तो तुम्हें बस क्या करना है, वहाँ पे एक लाइन के आगे अल्बर्टो ETAL फिर ब्रैकेट क्लोज। ये साइटेशन का तरीका है। हालांकि सबसे आसान तरीका है नंबर, लेकिन जो बड़े बड़े जर्नल हैं, लाइक जर्नल ऑफ पेट्रोलियम साइंस, जर्नल ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, फिर जर्नल ऑफ एक्सप्लोरेशन वगैरह, जो भी पेट्रोलियम के जो भी बड़े बड़े जर्नल हैं, वो प्रेफर करते हैं ऐसे नाम के साथ रेफरेंस को साइट किया जाए। ठीक है, और रेफरेंस लिखने का तरीका जो लास्ट में, तुम उसको अल्फ़ाबेटिकली लिख सकते हो, या फिर जैसे तुम्हारा अगर तुम साइटेशन तुम्हारा नाम के साथ है तो तुमको अल्फ़ाबेटिकली लिखना पड़ेगा, और नंबर के साथ है तो नंबर के अकॉर्डिंग। हम तुमको दोनों ही दिखा देंगे तुम लोग को कि कैसे साइट करते हैं। हाँ, और जो बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व है राइटिंग में कैसे, तो पहले तो तुम आउटलाइन बना सकते हो कि हाँ हमें ये लिखना है, और इनका रिसर्च को यूज़ करना है, इनका फार्मूला यूज़ करना है, और तुम्हारे पास ये डेटा अवेलेबल है, तो एक आउटलाइन बना सकते हैं कि, और तुम ये कर सकते हो, यहाँ पे कोरिलेशन फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे इस फार्मूला में इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली एक आउटलाइन बना ली रफ में। फिर तुम एक फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हो जिसमें तुम्हें प्लेगरिज्म वगैरह का टेंशन नहीं लेना, वहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो। तो उसके बाद फिर रिवाइजिंग द ड्राफ्ट देख लो कि तुमने कुछ गलत कुछ ऐसा जो नहीं लिख दिया, मतलब यहाँ पे तुमको ग्रामर वगैरह चेक नहीं करना कि तुमने क्या सही किया क्या गलत किया, तुम्हें बस ये लिखना है तुमने कुछ ऐसा तो नहीं लिख दिया जो कि टॉपिक से रिलेवेंट हो। तो ये रिवाइजिंग द ड्राफ्ट में आता। फिर कन्फर्मिंग टू फॉर्मेट, फिर जो फॉर्मेट बेसिकली हर एक जर्नल का एक एक फॉर्मेट होता है, लाइक कोई जर्नल चाहता है कि 10 का तुम्हारा वो मतलब फॉन्ट हो, फिर तुम्हारा टाइम्स न्यू रोमन हो लिखा हुआ, फिर किसी का कैलिब्री है, तो वो सब देख लेना जिस जर्नल में पब्लिश करना हो, तो उस हिसाब से वो कंफर्म होना चाहिए। हाँ, फिर फाइनल एडिटिंग जिसमें ग्रामेटिकल एरर वगैरह ये सब, क्वालिटी, हाँ क्वालिटी ऑफ राइटिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक ऐसा राइटिंग, ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ही भारी भारी सा वर्ड लिखो, जितना सिंपल उतना रिसर्च पेपर पब्लिश होने में जल्दी टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और जितना छोटा लाइक सेंटेंस कम वर्ड का हो तो सबसे अच्छा। मतलब तुम प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लिखोगे ना, तो वहाँ भी लोग प्रेफर करते हैं कि सेंटेंस जितना कम से कम वर्ड हो। तुम एज ए रीडर सोचो, मतलब तुम रीड कर रहे हो तुम्हारा पेपर, तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम जितना छोटा लिखो उतना जल्दी समझ आएगा, तो उस हिसाब से एडिटिंग किया जाता है और ज़्यादा सिंपल वर्ड। फिर प्रूफ रीडिंग जिसमें ग्रामेटिकल एरर वगैरह और पंक्चुएशन, स्पेलिंग, ये सब, हाँ ये सब काफ़ी मैटर करता है। तुम सोचो कि तुम एक पेपर डाले हो किसी जर्नल में और तुम एक कॉमा मिस कर दिए, मतलब तुम बेसिकली तुम्हें
कॉमा के बाद एक स्पेस दिया जाता है, कहीं भी लिखो तो तुम एक कॉमा के बाद स्पेस नहीं दिए ना तो वो रिजेक्ट कर देंगे, वो सही नहीं करते वो कुछ भी, वो बस बताते हैं कि ये तुम्हारा ये छूटा हुआ है, कॉमा के बाद स्पेस, तुम इसको करेक्ट करके भेजो, तो फिर उसमें टाइम चला गया 5-6 महीना। तो वो सब प्रूफ रीडिंग 3-4 बार करने का चीज़ है, मतलब तुम 3-4 बार करो उसको, देख ले, उसमें देखा जाता है कि स्पेलिंग पंक्चुएशन ये वगैरह सही है कि नहीं। तुम इस कॉमा के बाद एक स्पेस छोड़ना जरूरी है, तुम वो भी इग्नोर नहीं कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगर रिजेक्ट हो जाएगा फिर वेट करो, फिर और डिले होते ही चले जाते हैं। हाँ, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जिसके कारण मैं फर्स्ट पेपर 3 बार रिजेक्ट हुआ था। ये तो ये 4 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब अगर तुम लोग समझो तो सही है। टेबल को जो नंबर किया जाता है वो सिक्वेंसली किया जाता है, और हर टेबल जो तुम मेंशन किए हो वो टेक्स्ट में यूज़ होना चाहिए। लाइक जैसे टेबल, हाँ टेबल का जो नंबरिंग होता है, मतलब टेबल का जो हेडिंग होता है वो टेबल के ऊपर होता है। जैसे तुम्हारा एक टेबल है लाइक रिलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल, जिसमें रिलेटिव प्रोबेबिलिटी डेटा है, तो तुम उसके लिखोगे टेबल 1 रिलेटिव प्रोबेबिलिटी डेटा, तो वो टेबल 1 तुम्हारे टेक्स्ट में कहीं यूज़ होना चाहिए। लाइक तुम कहीं लिख रहे हो कि हाँ एज मेंशन्ड इन टेबल 1, तो हाँ तुम्हारा यूज़ हो गया। तो अगर कोई भी टेबल तुम दिए हो लेकिन वो टेक्स्ट में मेंशन नहीं है तो फिर वहाँ पे भी रिजेक्ट होने का चांसेस है। वो इम्प्रूव नहीं करते कुछ, वो बस ये बता देते कि ये तुम्हारा गलत है, तुम इसको सही करके दो, और इसमें अच्छा टाइम लग जाता है। तो ये सब ध्यान रखना कि जितना भी टेबल है वो मेंशन्ड होना चाहिए टेक्स्ट में। दूसरा फिगर, टेबल का जो भी हेडिंग होता है वो टेबल के ऊपर होता है, लेकिन फिगर का जो भी डिस्क्रिप्शन होता है वो फिगर के नीचे होता है। ये हर जगह ये ध्यान में रखने का है, और फिगर भी मेंशन होना चाहिए एज सेम एज टेबल, ये लाइक एज सोन इन फिगर 1, एज सोन इन फिगर 2 ऐसे। और फिगर भी नंबर सिक्वेंसली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन में अगर 2 टेबल है और लिटरेचर रिव्यू में 2 टेबल है तो हम इंट्रोडक्शन के सेक्शन को 1 मान रहे हैं और लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन को 2 मान रहे हैं, तो हम टेबल को ऐसे नंबर नहीं करेंगे, टेबल 1.1, 1.2, और लिटरेचर रिव्यू में 2 टेबल है तो टेबल 2.1, टेबल 2.2, ये नहीं, ये प्रोजेक्ट्स में होता है, ये रिपोर्ट्स में होता है। तुम्हें पेपर में टेबल्स को 1, 2, 3, 4 चाहे वो किसी भी सेक्शन में हो ऐसे ही नंबर करना, ऐसे ही मतलब नेम करना है। ये 2 प्रॉब्लम हुआ था मेरे साथ। तीसरा, इक्वेशन टाइप रिटन होना चाहिए, मतलब हाँ मतलब इक्वेशन मतलब वहाँ पे रिटन होना चाहिए। तुम हाँ वहाँ तो मैथमेटिकल टूल्स अवेलेबल है, तुम आराम से राइट कर सकते हो, और वो इक्वेशन के ऊपर नीचे अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब पे रिजेक्ट होता है पेपर, क्योंकि मैंने खुद लिखा था तो इसमें ये सब में प्रॉब्लम आया था। तो हाँ, इक्वेशन टाइप रिटन होना चाहिए और इक्वेशन के ऊपर नीचे स्पेस होना चाहिए, थोड़ा क्लियर होना चाहिए, जो रीडर के लिए आसान हो, जो रिव्यूअर हो उसके लिए आसान हो समझना। हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर इक्वेशन बहुत लंबा है तुम उसको राइट कर रहे हो, तुम्हारा फॉन्ट इक्वेशन का भी 10 है तो 10 ही होना चाहिए। और हाँ, फिगर का तुम जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो और तुम्हारा टेक्स्ट का फॉन्ट 11 है तो फिगर का डिस्क्रिप्शन का भी फॉन्ट 11 ही होना चाहिए, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको छोटा लिखना है। हाँ, तो जो इक्वेशन अगर बहुत बड़ा हो गया और तुम्हारा वो 2 लाइन ले रहा है तो एक पार्टिकुलर फॉर्म के बाद इक्वेशन को खत्म कर देना है। लाइक तुम्हारा इक्वेशन है x² + 2x प्लस लाइक fx = x² + 2x + 7 ऐसा है, और वो मतलब तुम्हारा बहुत बड़ा है, मतलब ऐसा मान लो, तो x² + 2x पे खत्म करना है फर्स्ट लाइन, दूसरा लाइन जो स्टार्ट करना है वो सिंबल के साथ स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि fx = x² + 2x प्लस ये फर्स्ट लाइन और 7 नीचे, इस पे पेपर रिजेक्ट हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अगर इक्वेशन लिख रहे हैं तो जो नया लाइन से स्टार्ट करो तो वहाँ पे सिंबल से स्टार्ट करना है। तो ये बेसिक 4 फैक्टर, ये मेरे ख्याल से हमको लगा कि ये इम्पोर्टेंट है तो ये बताना चाहिए। और रिसर्च पेपर के बारे में तो तुम्हें हाँ कल भी और पता चलेगा। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, ये 4 बेसिक इन्फॉर्मेशन, और भी बहुत सारे फैक्टर जैसे पंक्चुएशन, कॉमास वगैरह देख लेना, कॉमा के बाद स्पेस, ये सब देख लेना, ये सब मैटर करता। अभी मेरा रिसर्च बोनाफाइड्स, मतलब ये मेरा 3 रिसर्च है जो मैंने करा, ये तीनों का तीनों यूटीपी मलेशिया में इंटर्न के कारण हुआ। 1 मिनट, हाँ तो इसको पेपर बाय पेपर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी।
सबसे पहला है न्यू कोरिलेशंस एंड डिपोजिशन एनवेलप्स फॉर प्रेडिक्टिंग एस्फाल्ट इंस्टेबिलिटी। ये तीनों टॉपिक अगर तुम सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो तो ये तीनों टॉपिक तुम्हें काफ़ी फेवरेबल लगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हर कोई सोच सकता है इसको, बस इम्प्लीमेंट करना है। मतलब ये तीनों बहुत ही सिंपल टॉपिक है और हर कोई सोच रहा होगा कि हाँ ये तो हम भी सोच सकते थे। ऐसा है, ये ना तो कोई बड़ा हाईफाई चीज़ है कि ईओआर का ये टेक्निक है, इसको कैसे कर रहे हैं ये वो, इसमें कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ लेबोरेटरी काम है, ज़्यादा से ज़्यादा मैटलैब का काम है थोड़ा बहुत, और एक्सेल। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पेपर, न्यू कोरिलेशंस एंड डिपोजिशन एनवेलप्स फॉर प्रेडिक्टिंग स्टेबिलिटी इन क्रूड ऑयल। हम तो कोई पेपर का वो बता देंगे कैसा होता है। जैसे ये जर्नल ऑफ पेट्रोलियम साइंस एंड इंजीनियरिंग एक हमारा जर्नल है, काफ़ी फेमस जर्नल है, तुम और आगे जाओगे और पढ़ोगे तो इसके बारे में और पता चलेगा। जो एसपी वाले होंगे उनका एक अपना जर्नल है, जर्नल ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, और ये एक ओन जर्नल है, मतलब ये। तो ये एक टॉपिक है, इसका एब्स्ट्रैक्ट देखो, एब्स्ट्रैक्ट इतना बड़ा हो सकता है, यहाँ तो चलो काफ़ी बड़ा है, डिपेंड करता है पेपर के लेंथ पे, 15 पेज है तो ज़्यादा है तो ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट। ऐसा दिख रहा है क्या पेपर? जूम करें? हेलो? नो सर, सर पेपर नहीं दिख रहा? नो Sir, it's visible, सर sir. सर किसी और पेज पे, सर एब्स्ट्रैक्ट वाले पेज पे नहीं है हमारी सोच। ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं दिख रहा तुम लोग को, हाईलाइटेड जो है? अच्छा हाँ सर, हाँ दिख रहा है। जैसे स्टार्ट करते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट का ब्रीफ दे देते हैं। इसमें ये है कि पहले हमने क्या बताया कि प्रॉब्लम क्या है, द प्रेसिपिटेशन डिपोजिशन एंड एस्फाल्टिन आर अमंग द मोस्ट प्रेसिंग इशूज इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट्स का क्या क्या इशू है, ये पहला 2-3 लाइन में कवर हो गया। फिर एग्जिस्टिंग मॉडल क्या क्या है, जो कि लिटरेचर रिव्यू में आ गया तुम्हारा, कि ये सब पे रिसर्च। हाँ हाँ हाँ, हेलो Sir, sorry to interrupt. So your screen is stuck at particular slide which says my research bona fides. okay, let me know when it is okay. It is fine now? No, sir. So you should try like resharing the screen. Okay. Yes, so now it's visible. एट लास्ट आई विल टेल यू गाइज द जिस पे तुम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो मिस मत करना, क्योंकि वो सेशन का हम वेट कर रहे थे कि तुम लोग को कुछ बता पाएँ, तो वो मिस मत करना। ये तो चलो हाँ, ये पेपर है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, तो पहला 2-3 लाइन में ये कवर हो गया कि क्या प्रॉब्लम है। फिर 2-3 लाइन में कवर हुआ कि अभी एग्जिस्टिंग मॉडल या एग्जिस्टिंग रिसेंट स्टडीज़ में क्या क्या चल रहा। फिर तीसरा पैरा में, मतलब तीसरा 2-3 लाइन में ये कवर हुआ कि हम क्या करने वाले हैं और हम उसको कैसे रिलेट कर रहे हैं पास्ट स्टडीज से। ये तीसरा 4-5 लाइन, और लास्ट का कुछ लाइन ये तुम्हारा रिजल्ट, लाइक तुम्हारा कोफिशिएंट, स्क्वायर एरर या रिलेटिव स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर, ये कितना आया। फिर ये सारा रिजल्ट है। एब्स्ट्रैक्ट में कंक्लूजन ना भी डालो तो सही है, मतलब ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन नहीं है। और हाँ देखो, साइटेशन का एक तरीका, जैसे मान लो ये लाइन तुमने 4 पेपर से लिया है, तो फैन इट एल इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे 3 से ज़्यादा ऑथर थे, ठीक है। ग्रीक इटल इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे 3 से ज़्यादा ऑथर थे, और ये ग्रीक इटल फिर कॉमा फिर जिस साल ये पब्लिश हुआ। फिर एक जैसे पेपर जिसमें हाँ, जैसे इसमें 2 ऑथर हैं, ये दिख रहा, मेरा स्क्रीन दिख रहा सबको? ये Yes, sir. इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस अगर तुम यहाँ पे सीख गए तो ये फिर हमेशा के लिए याद रहेगा। हमामी एंड रेटुलोव्स्की, यहाँ पे 2 ऑथर है, तो ये हम लोग कैसे लिखे, इटल का जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 ऑथर और फिर ईयर। ओके, तो ये साइटेशन का तरीका है। और क्या इंपॉर्टेंट है, पहले हम ओवरव्यू दे देते हैं कि जो हम बताएं, उसके बाद हम टॉपिक का डिस्क्रिप्शन देते हैं। लाइक देखो, हमने फिगर 5 कहीं लिखा है, तो हमने फिगर 5 यहाँ मेंशन कर दिया, यूजिंग द स्टैग्राफिक सॉफ्टवेयर
हाँ, the stable and unstable regions can be determined as shown in figure 5. लाइक ये मेंशन करना जरूरी है, कोई भी फिगर मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम फिगर डाल दिए हो और वो फिगर कहीं टेक्स्ट में मेंशन ही नहीं है। उसी तरह टेबल 1 है यहाँ पे, तो टेबल 1 कहीं ना कहीं मेंशन हुआ होगा। देखो जैसे ये फिगर है, तो फिगर के नीचे फिगर का डिस्क्रिप्शन विद द सेम फॉन्ट, जितना फॉन्ट टेक्स्ट का है उतना ही ये फॉन्ट। और अगर फिगर भी तुम कहीं से लेते हो जैसे किसी पेपर से, तो वहां भी तुम्हें रेफरेंस को साइट करना पड़ेगा। ये पेपर की खास बात है कि तुम रेफरेंस को साइट करो तो वो दिख जाता है कि वो कहाँ पे रेफरेंस में। क्या इम्पोर्टेंट था, फिगर वगैरह मेंशन है ही, रेफरेंस साइटेशन हो ही गया। हाँ, इक्वेशंस लाइक ऐसे हर इक्वेशंस का नंबर होना चाहिए। और हाँ, फिगर और टेबल के बारे में तो बता दिए, इक्वेशन भी मेंशन होना चाहिए कि इक्वेशन 4 में ये है, इक्वेशन 2 में ये ऐसा। और ये पहला जो सेक्शन था वो इंट्रोडक्शन था, दूसरा ये मेथोडोलॉजी। ये 2 सेक्शन रहेगा, लेकिन टेबल और फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो जैसे नंबर चल रहा है वैसे ही चलेगा। मेथोडोलॉजी के अंदर अगर तुम्हारा कोई सब सेक्शन है तो 2.1 डेटा गैदरिंग वगैरह जो भी है। और ये सारा फ्लो चार्ट तुम्हारे खुद का बना हुआ होना चाहिए, तुम ये सब कॉपी नहीं कर सकते, तो वर्ड वगैरह में कहीं भी बना सकते हो। हाँ, जैसे देखो यहाँ पे टेबल 1 मेंशन्ड है, अगर तुम ये टेबल पे क्लिक करोगे ना तो वो टेबल ऑटोमेटिक वहाँ पे लेके चला जाएगा या फिर साइड पे। ठीक है, तो हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। और मेथोडोलॉजी वाला पार्ट हो गया। हाँ, फिर तीसरा सेक्शन आता है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। यहाँ मैंने अलग अलग नहीं करा, मतलब दोनों एक में कवर कर सकते हैं, बस हाँ सीरियली चलना चाहिए, बाकी मैटर नहीं करता कि तुम अलग अलग सेक्शन बना रहे हो। अभी तक रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सबसे लंबा हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि तुमने क्या क्या फाइंड करा है। हाँ, फिर ये कंक्लूजन मेनली तुमने कोई रेफरेंस साइटेशन दिखाना है और रेफरेंस कैसे लिखते हो। टेबल वगैरह फिगर वगैरह ऐसा ही था। एक्नॉलेजमेंट जरूरी नहीं है, यहाँ पे हमने डेटा लिया था मलेशियन मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन से, तो उनको एक्नॉलेज करना जरूरी था, मतलब उनसे तुमको एग्रीमेंट टाइप होता है कि हमने ये लिया तो हम आपको मेंशन करेंगे ऐसा। क्योंकि यूटीपी में सुपरवाइज जो हुआ था सारा इक्विपमेंट वगैरह, तो उन्हें भी करना चाहिए। और हाँ, देखो ये रेफरेंस साइटेशन जो इम्पोर्टेंट है, जैसे देखो यहाँ पे हमने नंबर से साइट ही नहीं करा किसी को, हर एक को ऑथर से साइट करा है, तो अल्फाबेटिकली चल रहा है, पहले ए फिर बी सी ऐसे करके जे। हाँ, मतलब अल्फाबेटिकली चल रहा, लाइक हाँ अल कलीफ से स्टार्ट हो रहा, अल मेहदादी अल समरी, जैसे 3 ऑथर है तो सारे का नाम लिखेंगे, टाइटल और फिर कहाँ पे पब्लिश हुआ है और फिर उसका लिंक। फिर जैसे कोई और कहते हैं, जैसे ये 2 ऑथर का नाम, फिर ईयर, फिर टाइटल, फिर कहाँ पे पब्लिश हुआ, फिर हीट ट्रांसफर इंजीनियरिंग वाले जर्नल में, और फिर उसका लिंक ऐसे। अब इस पेपर के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। हाँ, ये है कि न्यू कोरिलेशंस एंड डिपोजिशन एनवेलप फॉर प्रेडिक्टिंग एस्फाल्टिन स्टेबिलिटी। हमें क्या करना होता है कि एस्फाल्टिन का स्टेबिलिटी को, बेसिकली एस्फाल्टिन को स्टेबल होने नहीं देना होता है। अगर एस्फाल्टिन स्टेबल हो गया तो उसको रिमूव करना मुश्किल है, तो हमें वो फैक्टर्स डिटरमाइन करना था कि एस्फाल्टिन किस किस कंडीशन में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो उस पर अभी बहुत सारा रिसर्च हुआ है, लोग सारा प्रोडक्ट पे मतलब बहुत सारे रिसर्च कर चुके हैं कि एस्फाल्टिन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, सैचुरेट, एरोमेटिक, रेजिन, एस्फाल्टिन, ये सारा पे। तो रिसर्च उस पर चल रहा है कि एस्फाल्टिन किस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, सारा के अमाउंट पे, ये सारा कुछ हुआ। तो इस पेपर में हमने क्या किया कि एक नया कोरिलेशन पैरामीटर ढूंढा, लाइक एस्फाल्टिन बाय
रेजिंग और CII कोलाइडल इंस्टेबिलिटी इंडेक्स, ये सारा को डेंसिटी से कोरिलेट करवाया। फिर पता चला कि हाँ डेंसिटी के फैक्टर पे डिपेंड करता। तो अब तुम लोग का ये है कि हाँ फिर ये रहेगा कि हाँ ये करने से क्या फ़ायदा, इससे तो ये कोई टेक्निक तो है नहीं कि एस्फाल्टिन इससे रिमूव हो जाए। तो बेसिकली इससे हम लोग ये, इस पेपर से हम लोग ये जान पा रहे हैं कि ये किस कंडीशन में ज़्यादा स्टेबल रहता है। अगर हमें वो कंडीशन पता चल गया तो हम उस कंडीशन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक पेपर अर्ली फेज है एस्फाल्टिन के रिमूव को इनिशिएट करने का। मतलब उसके स्टेबिलिटी कंडीशंस को हमने यहाँ से जाना कि इस फैक्टर पे ज़्यादा डिपेंड करता है। डेंसिटी जैसे A/R का रेशियो अगर डेंसिटी के पावर पे हो तो इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। लाइक कोलाइडल इंस्टेबिलिटी इंडेक्स अगर डेंसिटी उसका फंक्शन डेंसिटी पॉलिनोमियल पे हो तो ज़्यादा डिपेंड करता, ज़्यादा स्टेबल होता। तो हमें वो चीज़ नहीं रखना है जिसपे एस्फाल्टिन स्टेबल हो, ताकि हम एस्फाल्टिन को आराम से किसी भी केमिकल एडिटिव्स या फिर डाल के रिमूव कर सकें। तो हमने बेसिकली यहाँ से कंडीशन जाना। ये पेपर का डिस्क्रिप्शन पूरा यही है। फिर दूसरा पेपर, ये जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग का पेपर है। तो इसमें क्या है, ये टॉपिक है एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ क्रिटिकल पैरामीटर्स ऑन कोनिंग इन हॉरिजॉन्टल वेल्स। इसमें भी पहले हम एक पेपर ओवरव्यू दे देते हैं। पेपर पहले एब्स्ट्रैक्ट इतना छोटा, हाँ कीवर्ड्स हर में मेंशन करना होता है तुम्हारा क्या क्या बेसिक कीवर्ड्स जो पूरे पेपर में यूज हुआ है। लाइक वाटर कोनिंग टॉपिक है तो वाटर कोनिंग यूज हो गई, ऑयल क्रिटिकल रेट कोरिलेशंस, विस्कोसिटी, डेंसिटी डिफरेंस, मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर सकते हो। Hello, sir. हाँ Sir, your screen is not visible. Like the paper you are sharing is not visible. why it is happening all the time? Okay, let me stop sharing. Is it okay now? Yes, sir. It's okay. Everything is same, like introduction and the most important thing in this paper we have cited the reference by the number, like here see number 1, number 2, number 3, number 4. This is the easy way of citation, as Journal of Engineering is not that prominent journal, so we can use this way of citation here. But if you want to publish paper in journals like JPT, Journal of Petroleum Science and Engineering, like I have shown before, you need to cite reference in that way. Okay. Let me show you how I have written references here. जैसे वहाँ पे मैंने क्या करा था कि अल्फाबेटिकल वाइज रेफरेंस लिखा था, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 1 नंबर पे वही रेफरेंस होना चाहिए जो हमने वहाँ पे साइट करा। 1 मतलब ये पेपर के अकॉर्डिंग चलता है सीरियली, जैसे जैसे साइट होते गया वैसे ही रेफरेंस का नंबरिंग रहेगा। 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखना वही होता है। ऑथर का नाम दो, फिर टॉपिक, उसका जो पेपर का टॉपिक है, फिर कहाँ पे पब्लिश हुआ, और फिर ईयर। या ये एक तरीका है, ईयर तुम लास्ट में लिख सकते हो, नहीं तो ईयर ऑथर के बाद भी लिख सकते हो। हाँ, तो ये जैसे ये पेपर मैंने जर्नल ऑफ पेट्रोलियम से पढ़ा, तो ये ऑथर का नाम, फिर उसका टॉपिक, फिर जहाँ पब्लिश हुआ जर्नल ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, फिर उसमें कहाँ पे, और फिर ईयर 1962। तो ये एक रेफरेंस लिखने का तरीका और साइटेशन का तरीका, ये एक न्यू था, बाकी सारा कुछ सेम है। वैसे ही वही रूल है, वही थंब रूल है, वैसे ही पेपर लिखते हैं। मतलब बहुत सिंपल है, तुम्हें बस बेसिक चीज़ हटाना है। जो रिव्यूअर होते हैं ना पेपर वाले, वो तो एक सब्जेक्ट का डीप नॉलेज तो उन्हें होता ही है, लेकिन तुम्हारा पेपर रिजेक्ट कभी थ्योरी पे जल्दी नहीं करते वो, क्योंकि वो तो वेरी कर सकता है टाइम के साथ। हर एक टेक्नोलॉजी एडवांस होता है, थ्योरी एडवांस होता है, उस पर जल्दी रिजेक्ट नहीं करता। जो बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इस पर रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत रहता है, और उस पर अगर तुम्हारा रिजेक्ट होना तो काफ़ी बुरा लगता है। वो सब ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इस टॉपिक में क्या है, एनालिसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ क्रिटिकल पैरामीटर। अभी तक जो था वो फर्स्ट ईयर के लिए था, ये थोड़ा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले भी देख सकते हैं। हाँ, एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ क्रिटिकल पैरामीटर्स ऑन कोनिंग इन हॉरिजॉन्टल वेल। इसमें क्या है कि वाटर कोनिंग का मैंने बताया था कि कैसे होता। तो जब वाटर कोनिंग होता है ना, तो ऑयल का जो फ्लो रेट होता है जस्ट कोनिंग के टाइम, वो बहुत सारा, मतलब बहुत लोगों ने उसका एक अलग अलग रेट का इक्वेशन बताया। जैसे इफ्रॉस ने बताया कि ये होगा उस टाइम क्रिटिकल फ्लो रेट का इक्वेशन। जैसे जस्ट कोनिंग स्टार्ट हुआ तो उस टाइम ऑयल रेट क्या होगा, इफ्रॉस ने बताया कि ये होगा।
दिख रहा मेरा पेपर सबको? हाँ, यस सर, इट्स विजिबल। फिर चैपरॉन ने बताया कि नहीं ये होगा, मतलब ये चेंजेस इसलिए क्योंकि किसी ने कंसीडर हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी कंसीडर नहीं करा, किसी ने वर्टिकल परमेबिलिटी कंसीडर नहीं करा, क्योंकि हर कोई चाहता कि इक्वेशन जितना सिंपली सॉल्व हो पाए वो। पहले क्या होता था कि हॉरिजॉन्टल वेल्स का क्रेज उतना था नहीं, ज्यादा होता नहीं था, ज्यादातर जो वेल्स होते थे वो वर्टिकल होते थे। अब तो स्लैंट वेल्स 4-5 तरह के वेल्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल वेल्स होते हैं। तो पहले क्या होता था, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी उतना कंसीडर नहीं करते थे लोग, जो भी रहता था वर्टिकल परमेबिलिटी। तो इस कारण से इक्वेशन में इतना चेंजेस है। और इफ्रॉस वाले में क्या है, इफ्रॉस वाले ने क्या किया, इफ्रॉस कोरिलेशन, क्रिटिकल फ्लो रेट पता है ना सबको, क्रिटिकल ऑयल फ्लो रेट, जिसने कोनिंग पढ़ा होगा उसे पता होगा, कोई बताओ। हेलो, है क्या कोई? Yes, sir. हाँ, पता है क्या किसी को क्रिटिकल ऑयल फ्लो रेट? कोनिंग पढ़ा है किसी ने? पढ़ा तो होगा यार, टी कुमार सर पढ़ाते। यस सर, सर एक्स डेफिनेशन याद नहीं। नहीं, डेफिनेशन नहीं जानना, मतलब जिसको जो दिमाग में आ रहा है वो कोई एक बताओ। Like एक particular pressure temperature condition at which the oil will start flowing. Okay, but that is condition. What is rate? What is critical oil flow rate? चलिए कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है ना, जैसे तुम्हारा वाटर कूलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम लाइक t इक्वल्स टू 1.2 सेकंड पे स्टार्ट हुआ, तो t इक्वल्स टू 1.2 सेकंड पे जो ऑयल का फ्लो रेट है उसको, उस फ्लो रेट को क्रिटिकल ऑयल फ्लो रेट कहते हैं। ओके, जब कूलिंग स्टार्ट हुआ उस टाइम पे जो ऑयल का फ्लो रेट है उस फ्लो रेट को क्रिटिकल ऑयल फ्लो रेट कहते हैं, इसलिए क्रिटिकल वर्ड है वहाँ पे। तो उस क्रिटिकल ऑयल फ्लो रेट का इक्वेशन ये बाकी लोगों ने दिया, उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस किस फैक्टर पे मतलब क्रिटिकल ऑयल फ्लो रेट डिपेंड करता है। लाइक जैसे ये इक्वेशन दिख रहा है सबको, दिख रहा? हेलो, Yes sir, yes sir, it's हाँ, visible. एक तो वाटर और Yes, ऑयल sir. और वाटर और ऑयल का डेंसिटी डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा। एच होता है हाइट ऑफ परफोरेशन, मतलब कितना लेंथ है तुम्हारा परफोरेशन का। परफोरेशन मतलब पता है ना, मतलब परफोरेशन मतलब जो तुम्हारा जो जोन है ऑयल जोन, वहाँ पे परफोरेट करते हैं बुलेट या जेट लगा करके, तो वो हाइट ऑफ परफोरेशन कितना है वो। फिर एल तुम्हारा शायद वो फ्रैक लेंथ होता, तो म्यू तुम्हारा विस्कोसिटी, बी ओ तुम्हारा फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर, और वाई ई क्या होता है, इसका कुछ फिगर है क्या? कोई नहीं, तुम लोग अगर अपने पीडीएफ में देखोगे तो वहाँ पे ये वाई एच के बारे में पता होगा, मतलब जो सर पढ़ाते हैं। तो ये सारे फैक्टर पे, तो ये सारा तुम्हारा मतलब एज्यूम्ड पैरामीटर है, तो ये सब फैक्टर तो चेंज हो सकता है। तो बेसिकली किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी, हमने इस पेपर में इफ्रॉस चुना क्योंकि क्योंकि हमने माना कि जो ड्रेनेज रेडियस है, इफ्रॉस कोरिलेशन वाज चोजन फॉर दिस पेपर सिंस अज्यूमिंग द ड्रेनेज रेडियस इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रिटिकल रेट। मतलब ड्रेनेज रेडियस को हमने, हमारे पास उसका डेटा नहीं था, मतलब हम उसको वेरी नहीं करा सकते, तो उसको हमने, इसलिए हमने ये इक्वेशन चुना। मतलब तुम कोई और इक्वेशन भी चुन सकते हो। तो लाइक ये जो रेट है वो डेंसिटी डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा, विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा, ये सब। तो हमने क्या करा, इफ्रॉस इक्वेशन लिया, हाँ वाई सी है, हाफ ड्रेनेज लेंथ है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। अगर किसी को चाहिए होगा तो तुम मुझसे मांगना। बेसिकली हम बता देते किया क्या। ये हमारा इक्वेशन है, हमने क्या किया कि एट अ टाइम बाकी सारे टर्म्स को कांस्टेंट रखा और सिर्फ विस्कोसिटी को वेरी कराया। फिर बाकी सारे टर्म्स को कांस्टेंट रखा, फिर डेंसिटी डिफरेंस को वेरी कराया, फिर बाकी सारे टर्म्स को कांस्टेंट रखा, फिर हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी को वेरी कराया। तो ऐसे करके हमने 3 ग्राफ बना लिए। राइट, ये इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी ऑन क्रिटिकल कोनिंग रेट, मतलब ये तुम्हारा ऑयल क्रिटिकल रेट और ये तुम्हारा विस्कोसिटी।
फिर उसी तरह सेम एज फॉर हॉरिजेंटल परमेबिलिटी, ऑयल क्रिटिकल रेट ये, और ये तुम्हारा हॉरिजेंटल परमेबिलिटी, सेम फॉर डेंसिटी डिफरेंस। हाँ, तो हमने क्या पाया, जैसे ये देखो, ये है तुम्हारा इफेक्ट ऑफ थिकनेस, डिफरेंट वेल्स का थिकनेस पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तुम ये देखो, थिकनेस वेरी करने से ज़्यादा ये चेंज नहीं हो रहा, और डेंसिटी डिफरेंस से भी मतलब कुछ चेंजेस हैं। तो हमने क्या पाया कंक्लूजन में, तुम अगर चेंजेस निकालते हो तो तुम्हारा जो ऑयल क्रिटिकल फ्लो रेट है वो सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। कंक्लूजन शो करते हैं। Fluid and formation property plays key roles in determining the critical flow rate. Analysis has shown that viscosity has the most significant effect towards oil critical flow rate. उसके बाद density difference. तो अब हमें बेसिकली पता चल गया कि ऑयल जो क्रिटिकल फ्लो रेट है वो विस्कोसिटी पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो वाटर कोनिंग को बचाने का एक तरीका हम ये कर सकते हैं कि हम वाटर कोनिंग पे फोकस ना करें, हम विस्कोसिटी कम करने पे फोकस करें। तो विस्कोसिटी जल्दी अगर कम हो, या हम प्रेशर डिफरेंस ये सब पे फोकस ना करें, तो हम एक कन्फाइंड हमारा टारगेट हो गया कि ये रिसर्च से ये पता चला, ये एक तो तुम्हारा रिसर्च रिकॉग्नाइज हो गया, दूसरा कि तुम विस्कोसिटी को अगर चेंज करते हो तो तुम्हारा कोनिंग बच सकता है, मतलब कोनिंग डिले हो सकता है। बेसिकली ऑयल क्रिटिकल रेट को हम और चेंज कर सकते हैं, तो विस्कोसिटी के फैक्टर पे हम वर्क कर सकते हैं। ये तुम्हारे इससे पता चल गया, ठीक है। इस पेपर के बारे में और हम तुमको बताएंगे, क्योंकि इस पे और काम तुम लोग कर सकते हो। ये एक ऐसा, ये एक बहुत सिंपल सा काम लग रहा होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये लास्ट में बताते हैं। तीसरा पेपर है ये, इसमें क्या है, ये भी बहुत सिंपल सा है, इसमें बहुत बहुत शॉर्ट में बता देते हैं। बाकी सारा सेम है, इसमें रेफरेंस साइटेशन भी नंबर से है, टेबल फिगर का डिस्क्रिप्शन नीचे, टेबल का डिस्क्रिप्शन ऊपर, बाकी सब सेम है। ये है इवेल्युएटिंग द, मेरा ज़्यादातर काम फ्लो एसिडेंस पे ही था, ये तुम्हें दिख ही रहा होगा। इवेल्युएटिंग द मैकेनिज्म्स ऑफ वैक्स डिपोजिशन इन क्रूड ऑयल पाइपलाइंस, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि वैक्स डिपोजिशन का बहुत सारे कारण होता है, शेयर स्ट्रिपिंग, डॉन इन मैकेनिज्म, फिर हाँ, तो वैक्स डिपोजिशन का कारण बहुत सारा होता है। लाइक यहाँ देखो, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के कारण हो सकता है वैक्स डिपोजिट पाइपलाइन में, शेयर डिस्पर्सन के कारण हो सकता है, ब्राउन एंड डिफ्यूजन के कारण हो सकता है, ग्रेविटी सेटलिंग के कारण हो सकता है। ये सारा कारण है जिसके कारण वैक्स डिपोजिशन हो सकता है। तो हमें बस इस पेपर से ये पता करना था कि किस फैक्टर के कारण वैक्स डिपोजिशन ज़्यादा होता है। तो जाके हम, मतलब मेरा तीनों पेपर बेसिकली इनिशियलाइजेशन पे है, मतलब तुम पहले कंडीशंस पता करो, उसके बाद तुम उस पर वर्क कर सकते हो। तो किस फैक्टर पे ज़्यादा डिपेंड करता है वैक्स डिपोजिशन, फिर हम उस पर वर्क कर सकते हैं कि हाँ इस फैक्टर को मिनिमाइज कैसे करना है। तो पूरे हमने क्या किया, हमने रेट ऑफ वैक्स डिपोजिशन का ग्राफ देखा विथ लेंथ ऑफ पाइपलाइन, फिर प्रेशर डिफरेंस का ग्राफ देखा, फिर वैक्स डिपोजिशन का थिकनेस का ग्राफ देखा। हर एक मैकेनिज्म में डेटा था अवेलेबल, ये फ्री का डेटा अवेलेबल था, गूगल पे भी मिल जाएगा। तो उस पर ग्राफ देखा, तो हमें पता चला कि जो शेयर स्ट्रिपिंग टेक्निक है उससे सबसे ज़्यादा वैक्स डिपोजिशन होता है। शेयर स्ट्रिपिंग, जैसे बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स अचीव्ड इट कैन बी डिड्यूस्ड दैट द शेयर स्ट्रिपिंग एंड रेट एनहांसमेंट इफेक्ट ड्यू टू ऑयल ट्रैप हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द वैक्स डिपोजिशन इन द पाइपलाइन। हाँ, और बाकी ग्रेविटी सेटलिंग वगैरह ये सब तो मतलब है ही कंडीशन। तो ये अब इस पेपर से ये पता चल गया कि हाँ चलो ये टेक्निक है जिसके कारण वैक्स डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम इस टेक्निक को मिनिमाइज करने के लिए काम नेक्स्ट रिसर्च में या फिर कभी और कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब तो लोग बताओ कि ये रिसर्च, ये पेपर वगैरह में किसी को कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो। Yes, sir. We will be taking the doubts we have in the chat box. Should we move on to that, sir? Okay. Hello. Okay. Yes. Yes, you can. I will tell you about some projects. When can I do that?
Yes, sir. Yes, sir. You can. Yes, sir. You can tell us about the projects first, and then we will move on to Q&A session. Wait. It is streaming live on na YouTube now. Yes, So sir. we can Yes, sir. stop the streaming if you want. Okay, let me answer some doubts. Yeah, sir. Fine. Okay, sir. Yes, sir. So the first query that we have is how to effectively find papers related to topic we are interested in. Effective find papers related to topic you are interested in. हाँ, you can search basically you can search from keywords. मतलब जो तुम्हारे keywords जैसे तुम्हारा water coning है, तो तुम सीधा keyword search करो, वन पेट्रो में जाओ, water coning search करो, उसमें तुम्हें ढेर सारे पेपर, मतलब इतना कि तुम पढ़ भी ना पाओ, इतना पेपर अवेलेबल है हर जगह, हर एक जर्नल ऑफ पेट्रोलियम साइंस हो, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी हो, हर जगह इतने सारे पेपर अवेलेबल है कि तुम उतना पढ़ भी नहीं पाओ। बस कीवर्ड सर्च करना है हर एक जर्नल में जाकर। और हाँ, एक वेबसाइट है SciFi, SCIFI, सुना है किसी ने? No, sir. Can you Yes, repeat sir. the name? SCIFI, जिसने सुना है ना, SciFi क्या होता है कि ऐसा कोई पेपर जिसके लिए तुम्हें पैसा मांग रहे हो, जो खुल नहीं रहा हो, तुम वहां पे SciFi में जाके लिंक डालो, तो वो तुम्हें डाउनलोड करके दे दो। Okay, sir. बहुत काम का चीज है, ठीक है। वन पेट्रो में तुम एक बार एसपी वालों से कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि वन पेट्रो में शायद हमारा कुछ एक्सेस वगैरह देते हैं वो, शायद कुछ पेपर्स के लिए, तो वो देख लेना। और हाँ, जर्नल ऑफ पेट्रोलियम साइंस, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इंस्टीट्यूट के पास साइंस डायरेक्ट का एक्सेस है, तुम कोई भी पेपर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तुम साइंस डायरेक्ट वेबसाइट खोलो और वहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च करो, जो भी पेपर के लिए पैसा मांग रहे हैं तुम अपने इंस्टीट्यूट आईडी से लॉगिन करो और हर पेपर फ्री में डाउनलोड करो। जैसे तुम्हें रिसर्च करना हो, मान लो पॉलीमर फ्लडिंग पे, तो तुम पॉलीमर फ्लडिंग सर्च करोगे कीवर्ड, तो वहाँ पे ढेर सारे पेपर आ जाएंगे, मतलब बहुत सारे पेपर। तुम हर एक पेपर जो फ्री है वो तो इजीली अवेलेबल है हर जगह, जो नहीं है वो साइंस डायरेक्ट में हमारे इंस्टीट्यूट आईडी के लॉगिन से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट। Okay, sir. Thank you, sir. The next question we have is suggest us some points that we should always keep in mind while writing a literature review. लिटरेचर रिव्यू के बारे में मैंने बताया ना, जैसे कि हाँ चलो, प्रीवियस पेपर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन जितना दे पाओ, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे तुम प्रीवियस पेपर्स के बारे में तुम अगर डिस्क्रिप्शन दे रहे हो ना, तो उस पेपर को ज़्यादा, मतलब ज़्यादा उस पेपर को ज़्यादा देखो जिसका साइटेशन बहुत हो। उससे क्या होता है कि तुम्हारा रीच पहले भी बढ़ सकता है, और जो तुम्हारे रिव्यूअर है वो पेपर से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि तुमने बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स को लिया है अपने आर्टिकल में, तो जिसका साइटेशन बहुत अच्छा खासा हो। तो इट्स नॉट लाइक कि हम मतलब जो नॉर्मल पेपर उसको मतलब उसको प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन हाँ अगर तुम थोड़ा सेल्फिश बनो यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू में, तो वो प्रॉफिटेबल है। तुम उस पेपर्स को साइट ज़्यादा करो जिसका साइटेशन ज़्यादा है, जिसका रीच ज़्यादा है। तुम्हें अगर तुम कोई भी वेबसाइट खोलोगे ना, जैसे साइंस डायरेक्ट, तुम्हें पेपर का रीच बताएगा, लाइक 1000 रीड्स है इसका, इसका 1200 साइटेशन है, मतलब 1200 लोगों ने उस पेपर को साइट किया है, तो उस पेपर को साइट करना थोड़ा प्रॉफिटेबल है। और हाँ, जितना रिसेंट पेपर साइट करोगे ना, लाइक 2000 के बाद का पेपर साइट करना चाहिए। जैसे अभी तुम एक पेपर लिख रहे हो, मान लो कि हाँ अभी किसी टॉपिक पे पेपर लिख रहे हो, तो मैं लिटरेचर रिव्यू में उसको साइट करना है, तो तुम क्या कर सकते हो, 2000 के बाद का सारा पेपर साइट कर सकते हो। मतलब पुराना, जितना पुराना हो तो लोग उतना प्रेफर नहीं करते, मतलब ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता, ये फायदे का चीज़ है। हाँ, और लिटरेचर रिव्यू में थोड़ा मतलब उसको मतलब डिटेल में कर सकते हो, बाकी टॉपिक को तुम जितना समराइज करके लिखो उतना अच्छा। लिटरेचर रिव्यू तुम्हारा थोड़ा बड़ा हो सकता है। और रेफरेंस साइटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा रेफरेंस यूज करो उतना आर्टिकल पब्लिश होने का चांसेस ज़्यादा है। लाइक अगर तुम सिर्फ 7 या 8 रेफरेंस देते हो, तो वो कभी भी मतलब तुम्हारे लिए फायदेमंद चीज़ है, मतलब एटलीस्ट 30-40 रेफरेंस होना चाहिए, तो तुम बेसिकली कीप इन माइंड वो होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। Okay, sir. The next question we have is there any other software required other than Word or Google Docs for compiling and formatting? Any software you would suggest? या वर्ड में तो यार सब कुछ हो जाता है, वर्ड में क्या प्रॉब्लम है, गूगल डॉक। Yes, sir. Any software specific regarding the research paper like that? MS वर्ड,
will always Okay. तो अगर तुम्हें मतलब कोई कर रहा हो और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? Yes, sir. हार्दिक कांटेक्ट कर सकते हैं। Yes, sir. We are done with Q&A session. You can So, give us a. सौम्य please. so we have one more question. So how to overcome the problem of inaccessibility to the laboratory for research methodology due to online process of COVID times? ये तो प्रॉब्लम है। तो बेसिकली तुम एक सेक्टर होता है जिसमें कोरिलेशन स्टफ्स होता है, वो तुम एक्सेल वगैरह और मैटलैब वगैरह, मेरा तुम देखे होगे जो पहला पेपर था जो जर्नल ऑफ पेट्रोलियम साइंस में था, वो बेसिकली एक कोरिलेशन स्टफ था। तो तुम एक पेपर को लो जिसमें जिसका लेबोरेटरी वाला काम है उसको थोड़ा डिले तुम कर सकते हो, जो पहले कोरिलेशन वाला काम वो तुम घर बैठे कर लो, और खुलना तो है ही कॉलेज, कल मेल भी आ गया, खुलने ही वाला है। तो वो एक छोटा सा पार्ट है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेबोरेटरी वाला काम बेसिकली 1 से 2 दिन में होता है, तो उसको तुम डिले कर सकते हो। बाकी जो भी काम है सारा मटेरियल, सारा टेक्स्ट इकट्ठा करना, फिर जो कोरिलेशन वाला काम है वो सब तुम करके रेडी रहो, ठीक है? और अगर तुम्हें लेबोरेटरी वाला काम ज़्यादा पसंद नहीं है लाइक, तो हाँ मतलब सिमुलेशन वगैरह, स्टैटिक मॉडलिंग, डायनामिक मॉडलिंग, ये सब तो तुम एक्सेस कर ही सकते हो। सॉफ्टवेयर उसके लिए अवेलेबल है ही, मतलब आई शुडंट टेल हियर, लेकिन हाँ क्रैक वर्जन तो है अवेलेबल हर जगह। हाँ और कुछ? No, sir. That's all for Q&A session. चेक कर लो एक बार चैट ऊपर का कुछ क्वेश्चन, ठीक है? Thank you, sir, for the insightful session. Now we know various aspects of the research. We also got to know the basic layout, how we should write the paper, and what should be the basic mistakes that we should avoid. It was really a great session full of words of wisdom. Also, I would like to thank all the audience that we have here. Thank you. It was such a pleasure. Thank you, sir. Thank you guys, it was really Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.